Recording in progress. Good morning, everyone. Welcome to your lordships. As you all know, we have completed chapter 12, that is investigation. Now our next topic is chapter 14, that is condition requisite for the initiation of proceeding. So chapter 14 starts with section 190, which says cognizance of offences by magistrate. What is cognizance? Cognizance means application of judicial minds upon the facts of the case. That means whatever are the facts of the case, the magistrate is applying his judicial mind upon that. So who can took the cognizance? That is magistrate. So what does section 190 says? That subject to the provisions of this chapter, any magistrate of first class and any magistrate of second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense. कोई भी magistrate किसी भी offense का cognizance ले सकता है. It is making the power of a magistrate very wide. Which magistrate? Magistrate of first class or magistrate of second class, especially empowered by CJM. तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है या मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास विच इज एम्पावर्ड बाय सीजीएम मे टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अपॉन receiving a complaint of facts which constitute such offense. 190 subsection 1 clause A says that magistrate may take cognizance upon a complaint, and B says that upon a police report of such facts. Means the complaint is disclosing the offense or the police report is disclosing the offense. So complaint is defined under which section? 2D, and police report is defined under which section? 2R. Okay, these two clauses has to be read with section 460 clause E, which says that if any magistrate who is not empowered to take cognizance upon any complaint or a police report, if he has taken the cognizance on that, then this irregularity will not vitiate the proceeding. अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने जो कि एम्पावर्ड नहीं था बट उसने कॉग्निजेंस ले लिया है तो ये इरेगुलरिटी बिकॉज यू आर नॉट एम्पावर्ड, बट देन ऑल्सो दैट विल नॉट बी विशिएटेड एज पर सेक्शन 460 क्लॉज ई. And the third clause is clause C. Upon information received from any person other than a police officer, information किससे received हुई है? Any person who is not a police officer, or upon his own knowledge, या magistrate ने अपनी own knowledge पे cognizance लिया है, that such offence has been committed. तो three are the three categories. मैजिस्ट्रेट की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय सीजीएम किन किन केसेस पे कॉग्निजेंस ले सकता है? कंप्लेंट पर, पुलिस रिपोर्ट पर, या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन हु इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज. सो दिस इज टू बी रेड विथ सेक्शन 461 subsection K. In this case, if the magistrate is not empowered to take the cognizance but he has took the cognizance, entire proceedings shall vitiate. Okay, because यहाँ पर क्या हो रहा, अपनी खुद की नॉलेज पे ले रहा मैजिस्ट्रेट. So to avoid the abuse of power, 461 provides that in this case, if the magistrate who is not empowered to take the cognizance, if he has already taken, then the proceedings will vitiate. And this clause has to be read with section 191, which says that it is the right of the accused that if a magistrate has taken the cognizance upon his own knowledge, then in that case magistrate will have to inform the accused that you have a right that you may institute. आप अपना केस किसी और मैजिस्ट्रेट से ट्राई करवा सकते हैं, किसी और कोर्ट से ट्राई करवा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने खुद ने कॉग्निजेंस लिया है, ना ही कंप्लेंट आई है ना ही पुलिस रिपोर्ट आई है. सो यहाँ पर एक्यूज को एक एक्स्ट्रा राइट ये मिल जाता है 191 में, दैट इफ in this case the accused can get his case tried into or inquired into by another court. And ये information, ये notice accused को
बिफोर टेकिंग एविडेंस देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट एविडेंस लेने से पहले ये नोटिस देगा एक्यूज को दैट यू मे इंक्वायर इनटू और ट्राई इनटू योर केस इनटू अनदर कोर्ट। Now, why here the word written magistrate of first class and magistrate of second class? Why court of session is not written? Court of session क्यों नहीं cognizance ले सकता है? Because section 193 of CRPC puts a bar on court of session to take a direct cognizance. 193 में bar है that court of session direct cognizance नहीं ले सकता है. And what is the reason for this? That court of session is a higher court, already burdened with मोस्ट ऑफ द केसेस। देन इन दैट केस उसे एक्सक्लूड किया जा रहा है कि कोई भी छोटे मोटे केस आ रहे तो हर केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जाएंगे। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस पर कॉग्निजेंस लेगा, फिर अगर उसे लगता है दैट द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन इन दैट केस वो क्या करेगा, 209 में उसे कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। और अगर उसे लगता है कि वो खुद ट्राई कर सकता है, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, देन ही मे ट्राई इट हिमसेल्फ। तो कोई ऐसा केस है, इज देयर एनी केस इन सीआरपीसी इन विच अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक अ डायरेक्ट कॉग्निजेंस? दैट इज सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 which relates to the defamation case of president, vice president or governor of the state or any public servant. In these cases, if the defamation relates to these person, then in that case court of session direct cognizance लेगा। and condition क्या है कि complaint within 6 month made की जानी चाहिए by PP। if in defamation cases में कंप्लेंट पीपी ने विद इन 6 मंथ की कर दी है, देन इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। बट इफ कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन 6 मंथ ऑफ द defamation, then in that case court of session will not take cognizance. And what is the procedure provided for this? That is section 237. Okay. The Chief Judicial Magistrate, that is CJM, may empower any magistrate of second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try. That means judicial magistrate first class के पास per se power है to take cognizance, but judicial magistrate second class requires the empowerment by the CJM. तो second subsection 2 provide that CJM will empower any judicial magistrate of second class. And this section 191, I have already told you that transfer on application of the accused. When a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1, what is that? Upon his own knowledge, the accused shall, before any evidence is taken, कोई भी evidence लेने से पहले accused shall be informed. Accused को inform करना होगा magistrate को that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate. He has this right. And if the accused or any of the accused, if there be more than once, objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by CJM in this behalf. If accused ने object raise कर दिया that I do not want my case to be tried into in this court, then in that case उसका court case उस court में transfer कर दिया जाएगा in which the CJM specifies. Okay. Section 193. Cognizance of offences by court of session, except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code. That means this section is डायरेक्टली मना कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को दैट कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। तो कमिटल कहाँ होती है? सेक्शन 209 में या फिर सेक्शन 323 में, सेक्शन 209 और सेक्शन 323।
एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, दैट मीन्स 199 सबसेक्शन 2, मतलब एक जगह प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में, दैट इज एक्सेप्शन. इन दिस केस द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक अ डायरेक्ट कॉग्निजेंस इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बट अदरवाइज ही कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑन एनी ऑफेंस अपॉन हिज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. बट इफ केस कमिट होके आएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कैसे जाएगा? कोई कोर्ट केस ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय हिम है, लाइक मर्डर, तो वो केस कैसे जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसने सारे ऑफेंसेस पे या जिसने ऑफेंसेस पे किसी भी ऑफेंस पे उसने कॉग्निजेंस लिया है, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ही केम टू नो दैट इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ये कैसे पता चलेगा? पीछे की जो टेबल शेड्यूल फर्स्ट में जो टेबल प्रोवाइडेड है वहां पर लिखा है कि कौन सी कोर्ट कौन सा केस ट्राई कर सकती है. हेयर द आईपीसी ऑफेंस सेक्शन नंबर, ऑफेंसेस, देन वेदर इट इज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, एंड देन इन दैट केस विच कोर्ट कैन ट्राई इट. यहां से पता चलेगा कौन सी कोर्ट कौन सा ऑफेंस ट्राई कर सकती. तो वेयर इट इज रिटन दैट कोर्ट ऑफ सेशन कैन ट्राई इट, दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. एंड 3-3 में कब कमिट होता है केस? 3-3 में कमिट होता है जैसे अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया किसी केस पे एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल एट एनी स्टेज मैजिस्ट्रेट केम टू नो, initially he does not know that the case exclusively triable by court of session, but later on at the stage of trial, at any stage of inquiry or trial, magistrate came to know that it is exclusively triable by court of session, then in that case he will commit the case to magistrate to court of session under section 323. जैसे ही कॉग्निजेंस लिया, अगर पता चल गया दैट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो 209 में कमिट कर देगा केस. बट इफ नहीं पता चला कॉग्निजेंस लेते टाइम, इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट हो गया है, अब इसकी किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, देन इन दैट केस 323 में कमिट होगा केस. ओके, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई. पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई तो कॉग्निजेंस किस में लेगा मैजिस्ट्रेट? 191 बी. अब इस पे कॉग्निजेंस ले लिया उसने, देन इन दैट केस क्या होगा? प्रोसेस इशू होगा. अगर एक्सक्लूसिव ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन है या नहीं है, प्रोसेस इशू होगा. प्रोसेस इशू हुआ, अक्यूज्ड आया, अक्यूज्ड अपीयर हुआ, मैजिस्ट्रेट ने देखा दैट केस बन रहा है कि केस नहीं बन रहा है. देन अगर केस नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज, बट इफ केस बन रहा है तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा. बट उससे पहले यहां पर अक्यूज्ड को कॉपी देनी होगी, एफआईआर की कॉपी देनी होगी, 161 के स्टेटमेंट की कॉपी देनी होगी 207 में, और पुलिस रिपोर्ट के केस में 207 अप्लाई करेगा कॉपीज के केस में. 164 का स्टेटमेंट देना होगा इफ एनी. दीज डॉक्यूमेंट्स उसको देने होंगे सो दैट ही कैन टेक हिज डिफेंस प्रॉपरली. एंड आफ्टर दैट अक्यूज के अगेंस्ट अगर कुछ भी प्रोसीड करने के लिए प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तब तो चार्ज फ्रेम करेंगे इफ देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर. इफ लेकिन नहीं बन रहा तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे. जहां चार्ज फ्रेम हुआ ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा. ओके, दिस इज फॉर द इन्वेस्टिगेशन केस. And what is the procedure in case of complaint? Complaint 2D में defined है. Complaint फाइल की complainant ने, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया 191A में. okay? Now मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को बुलाएगा एंड उन्हें एग्जामिन करेगा ऑन ओथ एंड उनका सिग्नेचर लेगा उनके स्टेटमेंट्स पे अंडर सेक्शन 200. इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बिकॉज इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है, अभी केवल स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, तो ये जनरल एक स्टेटमेंट है. देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट 202 में पोस्टपोन कर देगा इशू, ये देख, और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए ऑर्डर देगा. या तो इन्वेस्टिगेशन कराएगा या तो इंक्वायरी, अगर उसे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है. एंड टू नो वाई ही इज गिविंग द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन या तो खुद, इंक्वायरी या तो खुद करेगा या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, इसे चैप्टर 15 की इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. एंड व्हाट इज द पर्पस? टू सी वेदर देयर आर ग्राउंड्स टू प्रोसीड फर्दर और नॉट. इफ देयर आर नो ग्राउंड्स टू प्रोसीड फर्दर देन 203 में कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी.
मैजिस्ट्रेट ने अगर देखा 200 एंड 202 के 200 के स्टेटमेंट्स एग्जामिन किए एंड 202 की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन करने के बाद मैजिस्ट्रेट केम टू नो दैट देयर इज नो ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, देन इन दैट केस 203 में कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी. दिस इज अ रिवाइजेबल ऑर्डर. इसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती, रिवीजन लाई करती है. And if there is ground to proceed further, then in that case magistrate 204 में process issue करेगी, that is summons और warrant. Now accused को अब 208 में copies दी जाएंगी. अगर 164 की कोई कॉपी है तो वो दी जाएगी, अगर 161 की कोई कॉपी है तो वो दी जाएगी. आफ्टर दैट accused will appear and magistrate will see the same procedure that कोई सफिशिएंट ग्राउंड है इसके अगेंस्ट बन रहा है कि नहीं, उसके अगेंस्ट चार्जेस जो हैं या जो भी फैक्ट्स स्टेटेड है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहा है. अगर नहीं बन रहा है देन ही में डिस्चार्ज हिम. इफ बन रहे हैं तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा. चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर वही ट्रायल प्रोसीड कर जाएंगे. ओके, नाउ सेक्शन 195 टिल सेक्शन 199 देयर आर कंडीशंस दैट मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तभी ले सकता है जब ये कंडीशंस फुलफिल हो. मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस अपॉन एनी कंप्लेंट अपॉन एनी फैक्ट ओनली इफ द रिक्वायरमेंट्स इज फुलफिल्ड. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? सेक्शन 195 सेज दैट इफ कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, इफ अ कंप्लेंट इज मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन विच ऑफेंसेस, इन दीज ऑफेंसेस 172 टू 188 ऑफ IPC. इनका अबेटमेंट है, अबेटमेंट ऑफ दिस attempt to commit such offense or any criminal conspiracy to commit such offense. In these cases the complaint must be in writing by a public servant. Okay, complaint in writing होनी चाहिए public servant की. B कहता है कि कोई कोर्ट अगर कंप्लेंट कर रही है, that complaint must be in writing. In which cases 193 to 196, 199, 200 ये जितने भी केसेस हैं इनमें अगर कंप्लेंट कोर्ट कर रही है दैट कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग. एंड 195 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इफ कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है देन इट मस्ट बी इन राइटिंग इन दीज ऑफेंसेस. एंड इन दीज ऑफेंसेस इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय कोर्ट देन इन दैट केस दैट कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग. नाउ सेक्शन 195A. 195A says that procedure for witnesses in case of threatening etc. That means section 195A of IPC which provides that आपने किसी को थ्रेटन कर रखा है, किसी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए थ्रेटन कर रखा है, उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, तो कंप्लेंट कौन करेगा? अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A ऑफ IPC. 195A IPC की अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो कोई भी विटनेस या कोई भी अदर पर्सन फाइल कर सकता है. दैट इज थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस. ओके, 196 सेज दैट इफ इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, 295A ये IPC के जितने भी सेक्शंस हैं इनके अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल हो रही है तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस व्हेन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इन केसेस में कॉग्निजेंस तभी ले सकती कोर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन ऑब्टेन कर लिया. देन इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट हमें इंक्वायरी करनी है, ट्रायल करना है. एंड नो कोर्ट शैल टेक इन केसेस में आपको प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट या DM तीनों में से किसी की भी प्रीवियस सैंक्शन लेकर के प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, 197 रिलेट्स विद जजेस एंड मैजिस्ट्रेट. Prosecution of judges and public servants. When any person who is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of government,
मतलब कोई भी पर्सन जो कि जज है या जज था, या फिर मैजिस्ट्रेट है या मैजिस्ट्रेट था, या पब्लिक सर्वेंट था, विच हु वर नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, बिना गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन के उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकता है। अब वो अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस हैं, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया, अलेस्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम while acting or purporting to act in discharge of his official duty. That means जो भी act commit किया है, that is done in their official duty, in discharge of their official duty. Then in that case, no court shall take cognizance of offense except with the previous sanction. Previous sanction लेनी होगी इसमें। अगर जो person है वो employed by इन कनेक्शन यूनियन के अफेयर्स में एम्प्लॉयड है, देन इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, या फिर अफेयर्स ऑफ स्टेट में क्या नाम है अगर वो एम्प्लॉयड है, देन इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी, उसके बाद ही प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है कोर्ट। (198) prosecution for offences against marriage. No court shall take cognizance of an offence punishable under Chapter 20 of IPC except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. तो 198 में क्या है, अगर offence against marriage Chapter 20 of IPC, then in that case complaint कौन करेगा? Person who is aggrieved by that offence. (198A) 498A of IPC क्रूएलिटी। इन केसेस में कैसे लेगा कॉग्निजेंस कोर्ट, किसकी कंप्लेंट पर लेगा? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। या तो उस ऑफेंस के अगेंस्ट में पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई हो, मैजिस्ट्रेट तब उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा, और अपॉन अ कंप्लेंट, या तो पुलिस रिपोर्ट फाइल हो या तो कंप्लेंट मेड हुई हो, मेड बाय पर्सन एग्रीव्ड बाय दैट ऑफेंस, और एग्रीव्ड पर्सन के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या बाय हर फादर्स या मदर्स ब्रदर और सिस्टर। दैट मीन्स फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, सो एग्रीव्ड पर्सन के या फादर के ब्रदर एंड सिस्टर और मदर के ब्रदर एंड सिस्टर, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेकर के कंप्लेंट फाइल की, बाय एनी पर्सन with the leave of the court, by any person related to her by blood, marriage, adoption. इन केसेस में तो कंप्लेंट कर सकते हैं ये पर्सन्स, बट इफ कोई भी पर्सन है, अदर पर्सन जो कि उससे रिलेटेड बाय ब्लड है, मैरिज है, अडॉप्शन है, देन इन दैट केस कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। देन 198B 198B says that no court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of IPC. What is that? Sexual intercourse during judicial separation. In this case, where the person are in a marital relations, except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offence, upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband. Complaint कौन करेगी? Wife करेगी against the husband. 199 prosecution for defamation. No court shall take cognizance of an offence punishable under Chapter 21 of IPC, that is defamation, except upon a complaint made by person aggrieved. That means defamation के केस में complaint कौन करेगा? Person aggrieved. But if वो person 18 साल से कम का है, is below than 18 years, idiot है, lunatic है, इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल टू मेक कंप्लेंट है, या फिर वो सिक है या इन्फॉर्म है एंड अनेबल टू मेक द कंप्लेंट है, देन इन दैट केस, या कोई वुमेन है हु इज अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम एंड मैनर्स ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, दैट इज पर्दा नशीन वुमेन। सम अदर पर्सन, उनके बिहाफ पे कोई और कोर्ट की परमिशन लेकर के कंप्लेंट कर सकता है इन दिस बिहाफ, देन इन दैट केस आफ्टर मेकिंग द कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस। एंड 2 आपको पता ही है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इनके अगेंस्ट का डेफेमेशन का केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। सी अपॉन कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, दैट मीन्स डायरेक्ट कॉग्निजेंस, अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पीपी विद इन 6 months ऑफ द defamation case,
जिस दिन वो ऑफेंस कमिट हुआ, जिस दिन डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ, उसके विद इन 6 मंथ्स कंप्लेंट करनी होगी पीपी को. नाउ चैप्टर 15, complaints to magistrate. Chapter 15 relates to the complaint proceeding. That complaint आई, magistrate ने complaint पे cognizance लिया 191A में. अब इसके बाद की क्या proceeding है? तो examination of complainant. Section 200 provides about the examination of complainant and witnesses. A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant. That means the magistrate जो cognizance ले रहा है, magistrate taking cognizance of an offence. cognizance किसका ले रहा है? offence का. application of judicial mind किस पर है? offence जो commit हुआ उसका cognizance. cognizance कभी भी ऐसे नहीं, offence पे cognizance लिया है. on complaint किस पर? complaint पर. then in that case magistrate shall examine अपॉन ओथ. कैसे एग्जामिन करेगा? ओथ पर एग्जामिन करेगा. द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट. जितने भी विटनेसेस प्रेजेंट हैं उनका एग्जामिनेशन प्लस द पर्सन हु हैज मेड द कंप्लेंट. इफ एनी, अगर विटनेसेस कोई प्रेजेंट है देन. एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग. एंड उस एग्जामिनेशन का जो सब्जेक्ट है, उस एग्जामिनेशन जो सब्सटेंस है, दैट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड शैल बी साइन बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस एंड ऑल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट. दैट मीन्स कंप्लेनेंट भी साइन करेगा, विटनेस भी साइन करेगा, मैजिस्ट्रेट भी साइन करेगा. वेयर एज 161 के एग्जामिनेशन में मेकर ऑफ द स्टेटमेंट का साइन नहीं ले सकते हैं. तो जो भी एग्जामिनेशन हुई है वो ऑन ओथ होगी, उसको इन राइटिंग रिड्यूस किया जाएगा, उस पर साइन होंगे. प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस. अगर कंप्लेंट इन राइटिंग है बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ओके, और अ कोर्ट हैज मेड अ कंप्लेंट, कंप्लेंट राइटिंग में, तो 195 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस. क्योंकि कंप्लेनेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट है. और इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192, या फिर मेक ओवर हुआ सेक्शन 192 में, दैट मीन्स जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो सबॉर्डिनेट्स को केस मेक ओवर कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है दैट दिस केस शुड बी ट्राइड बाय यू. That is makeover. Provided further that if the magistrate makes over the case, makeover के केस में अगर केस दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेकओवर हुआ 192 में, then after examining the complainant and विटनेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद मेकओवर हुआ है, तो लेटर मैजिस्ट्रेट इसके पास केस गया है, उसे एग्जामिन करने की जरूरत नहीं कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जामिन हो चुके हैं. तो उनका स्टेटमेंट रिड्यूस इन राइटिंग भी है, ऑन ओथ भी है एंड साइन भी है, तो वो एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएगा उस मैजिस्ट्रेट के पास. ओके, तो दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है वो जिसने फॉरवर्ड किया है, चाहे तो वो कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को एग्जामिन कर ले, या जिसे फॉरवर्ड किया गया है वो एग्जामिन कर ले. 201 provides about the procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case. So, if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, किसी ऐसे magistrate को complaint चली गई है जो कि उस पर cognizance नहीं ले सकता है, जैसे judicial magistrate second class के पास complaint गई है, he is not empowered by CJM, then in that case क्या, he shall, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो रिटर्न कर देगा उसे, अगर कंप्लेंट ओरल में तो डायरेक्ट करेगा दैट प्रॉपर कोर्ट के पास जा करके आप अपना कंप्लेंट फाइल करिए. ओके, नाउ 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस. Any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, and shall, in case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused. That means कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसे कंप्लेंट मिली है किसी ऑफेंस की और वो उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है,
ऑथराइज्ड है या फिर केस उसे मेक ओवर किया गया है, देन इन दैट केस अगर उसे लगता है ही मे इफ ही थिंक्स फिट पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट अक्यूज के अगेंस्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस रोक सकता है. इश्यू ऑफ प्रोसेस दैट मीन्स समन इशू करने से या वारंट इशू करने से रोक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है कुछ टाइम के लिए. एंड शैल मैंडेटरी किस केस में, वेयर द अक्यूज इज रिसाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइजेज हिज जुरिसडिक्शन. अगर किसी ऐसे अक्यूज के अगेंस्ट कंप्लेंट है जो कि बियॉन्ड उसकी जुरिसडिक्शन रहता है, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. एंड पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं हम इशू ऑफ प्रोसेस? टू इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ, या तो मैजिस्ट्रेट खुद इंक्वायर करेगा केस को, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, और इट मे डायरेक्ट अ पुलिस ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस बिहाफ, or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किस पर्पज से कराया जा रहा है? टू इंश्योर, टू डिसाइड वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर proceeding. But if case exclusively triable by court of session and then in that case magistrate investigation का order नहीं देगा, provided that no such direction for investigation shall be made where it appears to the magistrate that the offence complained of is ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है ऑफेंस जिसकी कंप्लेंट आई है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, देन इन दैट केस इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं ऑर्डर करेगा. और वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट, कंप्लेंट किसने नहीं की है? कोर्ट ने क्या नाम है नहीं की है. अनलेस द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ, दैट मींस अगर कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन का ऑफेंस है, देन इन दैट केस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं होगा. और अगर कोई अदर केस है इन विच कोर्ट कंप्लेनेंट नहीं है अदर केसेस में, देन इन दैट केस पहले 200 का एग्जामिनेशन होगा. फर्स्ट द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस विल बी एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 200. आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 202. If and in an inquiry under subsection 1 the magistrate may if it think fit, that means subsection 1 में inquiry या investigate करने की power है magistrate के पास postpone करके issue. अगर inquiry कर रहा subsection 1 में magistrate, then he may if he thinks fit take evidence of witness on oath, witnesses का evidence oath पर ले सकता है, provided that if it appears to magistrate that offence complaint is of exclusively triable by court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. But if court of session से related case है, मतलब offence is exclusively triable by court of session, then in that case magistrate क्या करेगा? Magistrate will call complainant and all the witnesses and उन सब का examination लेगा court of session के case में, and वो record forward कर देगा जो भी जब केस कमिट करेगा तब. इफ an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this court. ठीक है. Now dismissal of complaint 203. If after considering the statements on oath, that means section 202 के statements, if any of the complainant and witness and the result of inquiry or investigation under section 202, that means जो भी statements 200 में लिए गए हैं complainant and witnesses के and 202 की जो भी inquiry या investigation हुआ है उसको consider करने के बाद magistrate is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, magistrate को लगता है there is no sufficient ground to proceed, he shall dismiss the complaint, वो complaint dismiss कर देगा, and in every such case he shall briefly record his reasons for doing so. That means if you are dismissing the complaint, if magistrate is dismissing the complaint, he shall record reasons for it. Okay? और अगर no sufficient ground to proceed further है तो magistrate क्या करेगा? Complaint dismiss कर देगा. As I already told you that this is a revisable order. Section 398 रेफर कर लीजिएगा. अपील इसके अगेंस्ट लाई नहीं करती है. ओके. नाउ चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट. इससे पहले का
सिर्फ कंप्लेंट जो फाइल हुई थी दैट इज 191A में जो कॉग्निजेंस लिया था उसके आगे की प्रोसीडिंग है, एंड ये आपकी दोनों केसेस की प्रोसीडिंग्स हैं। तो 204 में प्रोसेस इशू हो जाएगा। 204 इज 204 is about issue of process. If in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding and the case appears to be, that means magistrate की opinion में there is sufficient ground to proceed है and the case appear to be a summons case. Case कैसा है? Summons case. That means punishable with an imprisonment less than 2 years or fine only, then in that case he shall issue his summons for the attendance of accused. Summons case कहाँ है? 2W में. And if there is a warrant case that is 2X, then in that case he may issue a warrant. Magistrate चाहे तो warrant issue करे या चाहे तो summons issue करे if he thinks fit a summons for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such magistrate. Purpose क्या होता है summon or warrant का? Appearance of the accused person. That is why it is issued that this particular date पे, this particular time पर, this particular court में you will have to appear. No summon or warrant shall be issued against the accused person under subsection 1 unless until a list of a prosecution witnesses has been filed. तो समन एंड वारंट कब इशू होगा, प्रोसेस कब इशू होगा? जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट फाइल हो चुकी है उसके बाद ही इशू होगा। एंड इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी समन अ वारंट, अगर कोई कंप्लेंट इन राइटिंग की गई है देन इन दैट केस एवरी समन अ वारंट जो भी उस इशू होंगे उनके साथ साथ कंप्लेंट की एक कॉपी भी जाएगी। शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। When by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid. Okay, process fees means the fees which is incurred, the expenses which has been incurred in issuing a process. Summons गया है या वारंट गया है, उसको इशू करने में उसके प्रोसेस में जो भी फीस जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं दैट फीस इज टू बी रिक्वायर्ड एज अ प्रोसेस फीस। तो अगर किसी भी लॉ में प्रोसेस फीस रिक्वायर्ड है बाय एनी लॉ या एनी अदर फीस आर पेएबल, देन नो प्रोसेस शैल बी इशूड अनलेस द प्रोसेस फीस हैज बीन पेड, एंड इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम द मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। अगर फीस विद इन रीजनेबल टाइम नहीं सबमिट हुई देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट को। तो एक डिसमिसल आपका कहाँ था? 203 में। This is dismissal on merit. Why it is on merit? Because magistrate has already considered 200 का examination and 202 की inquiry and investigation को consider करने के बाद उसने 203 में उसने dismiss की है complaint. Whereas यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर process fees ना pay करने के, process fees has not been paid. Then in that case magistrate is dismissing the complaint. So it is not on merit. This is dismissal on default. Nothing in this section shall be deemed to affect the provision of section 87, that was warrant in lieu of summon. Okay, when warrant may be issued in lieu of summon. Now section 205. Section 205 is dispensing with personal attendance of accused. That personal accused की personal attendance से dispense off कर रहा है magistrate. किस cases में? Whenever a magistrate issues a summon, magistrate ने summon issue किया, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader. If magistrate को लगता है that accused को आने की कोई as such requirement नहीं है, then in that case magistrate may dispense of his appearance and allow him to proceed, to permit him to appear as a by his pleader. That means pleader के through appear हो सकता है, personal attendance अगर आपकी dispense off कर दी है।
but the magistrate inquiring into or trying the case may, in his discretion at any stage of the proceeding, direct the personal attendance of the accused. That means किसी भी stage पे magistrate, if things fit, that accused की personal attendance required, in that case enforce such attendance in the manner herein before provided. Then in that case magistrate उसको उसकी attendance require करा सकता है. 206 special summons in case of petty offences. Petty offences यहाँ defined है. For the purpose of this section, petty offences means any offence punishable only with fine not exceeding 1000 rupees, but does not include any offence so punishable under Motor Vehicle Act. That means कोई भी offence जो क्या नाम है 1000 से कम के fine के लिए punishable है, that is petty offences. Okay. If in the opinion of magistrate taking cognizance of a petty offence, the case may be summarily disposed of under section 260 or 261. That means magistrate ने cognizance लिया है किसी petty offence का जिसमें उसे लगता है कि ये case जो है इसका summary disposal हो सकता है section 260 में और section 261 में. Then in that case magistrate shall accept where he is, for reasons to be recorded in writing, of a contrary opinion, issue summons to the accused requiring him either to appear in person or by pleader before the magistrate on a specified date. Then in that case magistrate क्या करेगा, summon issue कर देगा that इस date पे आपको आना है. और if he desires to plead guilty to the charge without appearing before magistrate, to transmit before the specified date by post the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons, or if he desires to appear by pleader and to plead guilty to the charge through the such pleader, to authorize in writing the pleader to plead guilty to charge on this behalf and to pay fine through such pleader. That means petty offence का case है, मैजिस्ट्रेट ने पेटी ऑफेंस का केस पे कॉग्निजेंस लिया है, मैजिस्ट्रेट को लगता है इसका समरी डिस्पोजल हो सकता है अंडर सेक्शन 260. देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट समन इशू करेगा और उसे अक्यूज पर्सन को रिक्वायर करे, उसकी अटेंडेंस रिक्वायर करेगा दैट यू शुड बी अपेयर बिफोर मी ऑन दिस एंड दिस डेट. बट इफ अक्यूज्ड इज रेडी टू प्लीड गिल्टी एंड इज रेडी टू पे फाइन, फाइन इज लेस देन 1000, तो उसी टाइम पर जिस टाइम उसके पास समन गया है वो उसी टाइम पर उसे पे कर सकता है, उसे ऑथराइज इन राइटिंग मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है प्लीडर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन दिस बिहाफ एंड पे फाइन थ्रू सच प्लीडर. कि प्लीडर के थ्रू आप पे कर दीजिए अपना फाइन, आपको फिर आने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज इन द केस ऑफ ओनली फाइन ओनली केसेस. ओके. एंड समरी डिस्पोजल में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 months की मिल सकती है, इससे ऊपर की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं समरी ट्रायल में. 207 supply to the accused of copy of a police report or other document. That means case is instituted on a police report. Police report is submitted 173 clause 2 में police report submit हो गई है. In any case where the proceeding has been instituted on a police report, cognizance कहाँ लिया गया है 191B में. Then in that case the magistrate shall without delay furnish to the accused फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, बिना डीले, मैजिस्ट्रेट की इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट दैट विदाउट डीले फर्निश द कॉपी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स टू द अक्यूज पर्सन. किसकी कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, दैट इज सबमिटेड, दैट इज फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2. FIR की कॉपी 154 में जो FIR रिकॉर्ड हुई उसकी कॉपी. द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 में जितने भी पर्सन के स्टेटमेंट्स है दैट वर ओरल एग्जामिनेशन, जितने भी पर्सन के होते हैं उनके जितने की भी स्टेटमेंट इन राइटिंग रिड्यूस किए गए हैं बाय द पुलिस ऑफिसर, उन स्टेटमेंट्स की कॉपी. कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 में मैजिस्ट्रेट ने जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिक्वायर किया, मतलब स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड किया अंडर सेक्शन 164 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसकी एक कॉपी. Any other document या relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under subsection 5 of section 173. Section 173 subsection 5 में जो भी documents गए हैं उनकी कॉपी सब फॉरवर्ड कर देंगे 207 में. एंड 208 क्या है, 208 में केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, दैट आर कंप्लेंट केसेज और पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया उस केस में मैजिस्ट्रेट ने, या फिर
किसी और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अदर देन पुलिस ऑफिसर। सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट, 200 के, बिकॉज अगर कंप्लेंट केस है तो 200 एंड 202 के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं उनकी कॉपी। 164 या 161 के अगर कोई स्टेटमेंट है उनकी कॉपी। एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन विद द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहता है उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। ये सारी कॉपीज फॉरवर्ड कर दी जाएंगी किसे, अक्यूज्ड को। व्हाट इज द पर्पस, सो दैट ही कैन टेक हिज डिफेंस प्रॉपरली। उसके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, हाँ मेरे अगेंस्ट इस पर्सन ने ये कहा है, ओनली देन इन दैट केस ही कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस। So this is the purpose of giving the copy of to the accused person. Now 209, commitment of case to court of session when offence is triable exclusively by it. 209 में केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट हो रहा है। When in a case instituted on a police report or otherwise, the accused appears or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offence is exclusively triable by court of session. That means केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ या किसी या अदरवाइज मीन्स या तो कंप्लेंट पे अपॉन पर्सनल नॉलेज उस पे लिया गया है कॉग्निजेंस, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। तो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज एंड द अक्यूज अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट और ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड it appears to the magistrate, magistrate को ऐसा लगता है that the offence is triable exclusively by the court of session, then in that case he shall commit, magistrate case commit कर देगा after complying with the provisions of section 207 and 208, that means copy forwarded to the accused person as the case may be the case to the court of session and subject to provision of this case relating to bail, remand and accused to custody until such commitment has been made. That means magistrate को लगता है court exclusively triable by court of session and then he will commit the case to the court of session. Until then subject to bail and remand accused को custody में रखेंगे जब तक कि वो commitment नहीं हो जाती है। एंड 207 और 208 का कंप्लायंस होना जरूरी है। मैजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा दैट 207 और 208 विच इज एप्लीकेबल उसका कंप्लायंस हो गया, वो कॉपीज एक्यूज को मिल गई। आफ्टर दैट ही विल कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल एंड और रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। दैट मीन्स बेल से रिलेटेड प्रोविजन के सब्जेक्ट टू अक्यूज को कस्टडी में दे देगा ड्यूरिंग अंटिल द कंक्लूजन, जितने टाइम तक ट्रायल चल रहा है, जहाँ से ट्रायल स्टार्ट हुआ है जहाँ तक कंक्लूड हो रहा है वहाँ तक अक्यूज को कस्टडी में दे देगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ बेल। अगर बेल उसको मिल सकती है देन ही विल टेक द बेल, अदरवाइज वो जेल कस्टडी में रहेगा। सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस, दैट कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन, the record of the case and the documents and articles if any which are to be produced in evidence। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स केस का रिपोर्ट पूरा कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड करेगा मैजिस्ट्रेट एंड पीपी को नोटिफाई करेगा ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ही विल नोटिफाई द पीपी दैट केस हैज बीन कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन सो दैट ही कैन इनिशिएट हिज प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 225। सेक्शन 210 प्रोवाइड्स दैट किसी केस में कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने एंड मैजिस्ट्रेट को पता चलता है, मैजिस्ट्रेट केम टू नो दैट पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द सेम केस, देन इन दैट केस व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 210। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। सो when in a case instituted otherwise than on a police report, hereinafter referred to as complaint case, that means case instituted on complaint case, if it is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him, during the course of inquiry or trial magistrate came to know that an investigation by the police is in progress in relation to the same offence,
विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल हेल्ड बाय हिम, मतलब जिस मैटर पे वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी या ट्रायल कर रहा है उसी मैटर पे पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द सेम ऑफेंस, द मैजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग, मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स स्टे कर देगा ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड कॉल फॉर अ रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट जहां तक उसने प्रोसीडिंग की है वहां तक मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग स्टे कर देगा और उसके बाद पुलिस ऑफिसर से कहेगा टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। देन पुलिस ऑफिसर जब 173 की रिपोर्ट सबमिट कर देगा, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट विल सी दैट वेदर इट इज अगेंस्ट द सेम अक्यूज और अदर अक्यूज। अगर मैटर इन्वेस्टिगेशन सेम अक्यूज के अगेंस्ट हो रहा है, कंप्लेंट भी सेम अक्यूज के अगेंस्ट है, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट विल ट्राई बोथ द केसेस टुगेदर एंड ये माना जाएगा दैट द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। But if accused are different person, investigation is conducting by police officer against a different accused and complaint is against a different accused person, then in that case magistrate ने जो proceeding stay की थी उसे continue कर देगा। Okay? Subsection 2C, if a report is made by the investigating police officer under subsection 3, section 173, and on such report cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case, that means report 173 में submit कर दिया है police officer ने, on such report cognizance of offence is taken by the magistrate, उस report पे magistrate ने cognizance ले लिया है अगेंस्ट एनी पर्सन, किस पर्सन के अगेंस्ट, हु इज एन एक्यूज इन द कंप्लेंट केस, वो कंप्लेंट केस में भी एक्यूज है, इस केस में भी, द मैजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एज इफ बोथ केसेस वर द इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। If the police report does not relate to any accused in the complaint case, or if the magistrate does not take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was said by him in accordance with the procedure of this code. That means if accused are different persons, then in that case magistrate अपनी जो proceedings उसने stay की थी complaint की उसके साथ continue कर जाएगा, पुलिस ऑफिसर अपना investigation carry on करेगा, जो पुलिस ऑफिसर पे फिर अलग से जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई थी 173 की उस पे अलग से कॉग्निजेंस लिया, कंप्लेंट केस अलग से प्रोसीड करेगा। नाउ चैप्टर 17 दैट इज चार्ज। चार्ज का फॉर्म नंबर 32 है। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 211 टू 224। So charge is defined under which section? Section 2B. But this definition is only inclusive of nature. It is not defining the term charge. Then what is charge? It is precise accusation upon any person about the offense which he has committed. Okay? The term charge has been defined in section 2B of the code. According to it, the charge includes any head of charge when the charge contains more than one head. This definition is merely inclusive and does not explain the meaning of the charge. It can be defined as precise formulation of a specific accusation made against a person of an offense alleged to have been committed by him. What is it? Precise formulation of a specific accusation against a person of an offense alleged to have been committed by him. Okay. And what is the object of charge? To notify the accused person about the charge, about the accusation which has been formed alleged against him. The charge serves as a purpose of notice or intimation to the accused person, giving a clear and unambiguous notice of the nature of the accusation. It is to enable the accused to have a clear idea of what he is being tried for. Accused को पता होना चाहिए कि किस offense के लिए उसे charge किया जा रहा है, किस offense के लिए उसे try किया जा रहा है। तो it is an important step in criminal time to separate the stage of inquiry from trial. That means जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ आपका इंक्वायरी चल रही थी, यहाँ आपका चार्ज फ्रेम हुआ आफ्टर इंक्वायरी, जैसे ही पता चला कि हाँ उसने अफेंस कमिट किया, या अफेंस कमिट किया इन द सेंस प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है फैक्ट्स को देखते हुए दैट एक्यूज पर्सन ने अफेंस कमिट किया है एंड देयर इज स्कोप ऑफ ट्रायल। हम ट्रायल करके पता करना चाहिए दैट एविडेंसेस के थ्रू दैट वेदर अफेंस कमिट किया है इस पर्सन ने और नहीं, देन इन दैट केस कोर्ट विल फ्रेम द चार्ज। जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ ट्रायल विल कमेंस। Now section 211 which provides that contents of charge. Every charge under this code shall state the offense with which the accused is charged. तो क्या लिखना होगा, हर चार्ज में क्या मेंशन होगा, अफेंस, जिस अफेंस से एक्यूज चार्ज्ड है वो मेंशन करना होगा। इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, इफ बाय लॉ दैट ऑफेंस हैज बीन गिवन एनी स्पेसिफिक नेम, देन दैट नेम शैल बी मेंशन्ड। द ऑफेंस मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, लाइक मर्डर, किडनैपिंग। If the law which creates the offense does not give it any specific name, अगर कोई स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड नहीं है, लाइक मर्डर, किडनैपिंग, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं स्पेसिफाई, देन इन दैट केस definition, so much of definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. कोई specific name नहीं but definition है, तो जितने पार्ट में उस offense के बारे में लिखा हुआ है, so much of definition of the offense उतना चार्ज में मेंशन करना होगा, so that accused को नोटिस मिल जाए that किस मैटर से वो चार्ज्ड है। The law and section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge. That means अगर मर्डर से मर्डर उसके अगेंस्ट मर्डर का है तो 302 का सेक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट को मैजिस्ट्रेट को मेंशन करना होगा चार्ज में दैट 302 आईपीसी एप्लीकेबल है, और अटेम्प्ट टू सॉरी इफ देयर इज मर्डर, इफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है देन 304, अटेम्प्ट टू मर्डर 307। तो ये मेंशन करना होगा किस लॉ का किस सेक्शन में वो ऑफेंस पनिशेबल है। The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charge was fulfilled in a particular case. The charge shall be written in the language of the court. This is also asked. चार्ज किसकी लैंग्वेज में लिखा, जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में चार्ज फ्रेम होगा। If the accused having been previously convicted of any offence, accused previously convict हो चुका है किसी offence से, and because of that previous conviction he is liable to the enhanced punishment by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offence. अगर उसने कोई previous conviction कर रखी है देन उन प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से या तो उसकी सेंटेंस इन्हांस हो सकता है या फिर कोई और डिफरेंट उसको ऑफेंस के लिए चार्ज किया सकता है। देन इन दैट केस एंड इट इज intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment, and previous conviction को prove करना भी जरूरी है। In that case which the court may think fit to award such subsequent offense, the fact, date, place of the previous conviction shall be stated in the charge। जो भी फैक्ट्स हैं उस प्रीवियस कन्विक्शन के, जो डेट थी उसकी कन्विक्शन की, प्लस प्लेस जहां जिस कोर्ट ने उसे दिया था प्रीवियस कन्विक्शन, शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज। एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स नहीं लिखे जा पाए तो वो कभी भी कोर्ट ऐड कर सकती है एट एनी टाइम बिफोर दी सेंटेंस इज पास। सेंटेंस पास करने से पहले कभी भी। ट्रायल कंडक्ट होता है, ट्रायल में क्या होता है, आपका चार्ज फ्रेम हो चुका है, एविडेंस लेते हैं प्रोसिक्यूशन के, 313 का एग्जामिनेशन होता है एक्यूज्ड का, आफ्टर द एविडेंस लेते हैं डिफेंस से। इसके बाद कोर्ट केम टू नो दैट वेदर एक्यूज्ड पर्सन इज लायबल टू बी एक्विटेड और वेदर इट इज लायबल टू बी कन्विक्टेड। अगर कन्विक्शन होता है एक्यूज्ड पर्सन का देन इन दैट केस ही विल बी हियर ऑन सेंटेंस एंड आफ्टर दैट जजमेंट विल बी प्रोनाउंस्ड। सो एट एनी टाइम बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड आप उसको मैजिस्ट्रेट जो है, कोर्ट जो है, उस चार्ज को उस प्रीवियस कन्विक्शन के फैक्ट्स को ऐड कर सकती है। अब एग्जाम्पल देखिए, इलस्ट्रेशंस। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी।
This is equivalent to a statement that A's act fell within the definition of murder given in section 299 and section 300 of the IPC, that it did not fall within any of the general exceptions of the said code, and that it did not fall within any of the 5 exception of section 300, that is definition of murder, or that if it did fall within exception 1 or other of the 3 provisions, to the exception applied to it. Okay, अगर लिखा है चार्ज में दैट मर्डर किया है इन ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, तो ये मानेंगे 299 या 300 ऑफ आईपीसी लग रहा है, एंड ये किसी भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है, एंड 300 की किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है. पर्टिकुलर्स एज टू प्लेस ऑफ टाइम, तो ऊपर क्या था 211 में कंटेंट्स ऑफ चार्ज था, चार्ज में क्या क्या मेंशन करना है, दैट इज ऑफेंस बाय विच ही इज चार्ज, सेक्शन नंबर, लॉ, और पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence, and the person, if any, against whom or the thing in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the notice of the matter with which he is charged. तो जिस टाइम पर उसने ऑफेंस किया है, जिस प्लेस पे किया, जिस पर्सन के अगेंस्ट किया है, वो भी मेंशन करना होगा. When the accused is charged with criminal breach of trust या dishonest misappropriation of money or any movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum. That means अगर criminal breach of trust का केस है या dishonest misappropriation of money और property का केस है, then in that case but एक एक offense के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है. इंटायर ग्रॉस सम, जितने अमाउंट के लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या जितने भी अमाउंट के लिए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया है, दैट अमाउंट शुड बी मेंशन्ड. और किसी मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट अगर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया है, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी दैट शुड बी मेंशन्ड, दैट किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किया है, विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स एंड एग्जैक्ट डेट. सारी डेट्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. जहाँ से ऑफेंस आपका स्टार्ट हुआ है, लाइक 1 जुलाई से ऑफेंस आपका स्टार्ट हुआ है, अक्यूज ने कमिट करना शुरू किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड 1 सितंबर तक कमिट किया है. तो इसमें जिस डेट पे किया है, फॉर एग्जांपल 6 पे किया है, 8 पे किया, तो पर्टिकुलर डेट्स मेंशन करना जरूरी नहीं. ग्रॉस सम जितने अमाउंट का किया है प्लस जिस डेट से लेकर के जिस डेट तक के किया है, वो डेट्स मेंशन करनी होगी. बट दैट शुड नॉट एक्सीड 1 year. The time included between the first and last of such dates shall not exceed 1 year. 1 year तक के ही offences को include कर सकते हैं. And the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence. इन्हें one offence माना जाएगा. भले आपने different dates पे commit किया और different dates पे आपके offences हो रहे हो, लेकिन इनको हम मानेंगे, one offence मानेंगे within the meaning of section 219. Section 213. When manner of committing offence must be stated, when the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter. That means 211 के जो भी requirements हैं and 212 की जो भी requirements थी, वो charge में mentioned होना ज़रूरी है, so that accused को notice दी जा सके about the offences which he has committed, which is alleged to committed by him. And अगर वो sufficient नहीं है, 211 and 212 में के particulars sufficient नहीं है, then in that case the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for the purpose. That means time, place भी बता दिया, person भी बता दिया, contents of charge जो date वो section, law number सब mention कर दिया charge में, but that is not giving the sufficient notice to the accused. Then in that case manner भी बताना होगा charge में, like if theft commit किया है तो किस manner से किया है, मर्डर कमिट किया है किस वेपन से किया है, किस तरह से, किस मैनर में किया है, दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड इन दी चार्ज. (214) Words in charge taken in sense of law under which offence is punishable. In every charge, words used in describing an offence shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offence is punishable. उस law में उस offence
को जो मीनिंग दी गई है, जो सेंस दिया गया है, वो ही उस हम मतलब निकालेंगे. इफेक्ट्स ऑफ एरर्स 215. No error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission or it has occasioned a failure of justice. That means अगर चार्ज फ्रेम करने में कोई एरर हो गया है या ओमिशन हो गया है तो उसे हम इरेगुलरिटी नहीं मानेंगे अनलेस अक्यूज जो है वो मिसलेड ना हो गया हो बाय द एरर ऑफ या ओमिशन ऑफ सच चार्ज और फेलियर ऑफ जस्टिस ना ओकेजन हुआ हो. अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया या अक्यूज मिसलेड हो गया देन इन दैट केस रीफ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी. बट इफ अक्यूज मिसलेड नहीं हुआ है और फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन नहीं हुआ देन इन दैट केस इट विल नॉट अफेक्ट इट. अब इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है दैट इज डी. A is charged with the murder of Khuda Bakhsh on 21st January 1882. In fact, the murdered person's name was Haider Bakhsh. मतलब चार्ज था वो खुदा बख्श के लिए जबकि उसने मर्डर जिसका किया था वो हैदर बख्श का था. एंड द डेट ऑफ मर्डर वाज 20th जनवरी एंड चार्ज कब था 21st जनवरी के लिए. ए वॉज नेवर चार्ज विद एनी मर्डर बट वन. इसके अलावा ए किसी और मर्डर के लिए चार्ज नहीं था. एंड हैड हर्ड द इंक्वायरी बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट के साथ इंक्वायरी सुन भी चुका था मैजिस्ट्रेट के सामने विच रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द केस ऑफ हैदर बख्श. तो इंक्वायरी जो थी वो हैदर बख्श के केस से ही एक्सक्लूसिवली रेफर कर रही थी. द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ए वॉज नॉट मिसलेड एंड दैट द एरर इन चार्ज वॉज इमटेरियल. दैट मीन्स कि इवन दो चार्ज में खुदा बख्श लिखा हो और डेट गलत मेंशन की हो बट उसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी हो चुकी है एंड अक्यूज ने उसे सुन लिया है प्रॉपरली एंड उसके अलावा उसने कोई और ऑफेंस ऑफ मर्डर कमिट ही नहीं किया देन इन दैट केस कोर्ट ये मानेगी दैट ए मिसलेड नहीं हुआ था. अगर ये अक्यूज को लगता है कि अक्यूज मिसलेड हुआ है देन ही विल हैव टू प्रूव दैट पॉइंट बिफोर द कोर्ट. बट इफ एग्जाम्पल नंबर ई, इफ ए वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 20th जनवरी, हैदर बख्श से मर्डर से चार्ज है ऑन 20th जनवरी एंड खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर ऑन 21st जनवरी. दैट मीन्स हैदर बख्श ले चार्ज 20th जनवरी का मर्डर कमिट किया है हैदर बख्श को और खुदा बख्श का मर्डर कमिट किया है 21st जनवरी को. व्हेन द चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ हैदर बख्श ही वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा बख्श. हैदर बख्श के चार्ज में उसको खुदा बख्श के लिए ट्राई किया गया. द विटनेसेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वर विटनेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श. और विटनेसेस किस केस के थे? हैदर बख्श के थे. चार्ज फ्रेम हुआ है हैदर बख्श का केस का और ट्राई किया जा रहा है खुदा बख्श के केस के लिए और विटनेसेस जो प्रेजेंट है वो हैदर बख्श के केस के लिए हैं जबकि ट्रायल किसका हो रहा है? खुदा बख्श का. तो ये माना जाएगा कि एक्यूज हैज़ बीन मिसलेड बिकॉज उसने जो विटनेसेस प्रोड्यूस किए हैं, जो विटनेसेस उसने प्रेजेंट किए हैं कोर्ट में दैट आर फ्रॉम हैदर बख्श केस. द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस दैट ए वॉज मिसलेड एंड दैट द एरर वॉज मटेरियल. देन इन दैट केस कोर्ट विल reframe the charge. Now section 216. This section has to be read with 215 has to read with section 464. 464 states that no finding, sentence or order by a court of competent jurisdiction shall be deemed to be invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in charge including misjoinder, unless in the opinion of the court of appeal, confirmation or revision, a failure of justice has been occasioned. That means 215 में जो ओमिशन हो रहा है दैट एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग जो ओमिशन हो रहा है वो बिफोर ट्रायल हो रहा है बट दिस इज आफ्टर ट्रायल. नो आफ्टर ट्रायल फाइंडिंग या सेंटेंस या ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है एंड आफ्टर दैट इट केम टू नो दैट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड नॉट प्रॉपरली.
देन इन दैट केस या तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था या एनी ग्राउंड ऑफ एनी एरर या ओमिशन उस चार्ज में। तो जब तक कि एक्यूज मिसलेड ना हुआ हो या फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन ना हुआ हो तब तक इसको इरेगुलरिटी नहीं, मानी कोई भी फाइंडिंग सेंटेंस चेंज नहीं किया जाएगा, ऑल्टर नहीं किया जाएगा। Alteration or addition in the charge, section 216. The code gives ample power to the court to alter or amend a charge. See, court may alter charge. 216. Any court may alter or add to any charge at any time before the judgment is pronounced. That means alteration or addition कब तक हो सकता है चार्ज में? Before judgment is pronounced. Judgment pronounce होने से पहले कभी भी। Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused. जितने भी alteration या addition हो रहे हैं that shall be read and explained to the accused person. That आपके लिए पहले ये charge frame हुआ था आपके against, now it has been altered or it has been added. If the alteration or addition to a charge is such that the proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, that means if alteration या addition इस nature के हैं, that is it is not prejudicing the accused person in his defense या prosecutor को prejudice नहीं कर रहे हैं to conduct his case, the court may in its discretion after such alteration या addition has been made proceed with the trial if it is not prejudice to the accused in defense or prosecution in conducting the case. Court may proceed with the trial as if the altered added charge has been the original charge. ये मानते हुए कि जो charge alter हुआ है या add हुआ है that is originally ऐसा था. But if accused को prejudice cause हो रहा है या prosecutor को prejudice cause हो रहा है then in that case court may direct a new trial. Alteration of charge या addition of charge करने के बाद अगर accused को prejudice नहीं हो रहा है तो court as it is proceed कर जाएगी. But if prejudice cause हो रहा है then in that case court may direct a new trial or adjourn the trial for such a period as may be necessary. Then in that case court नया trial करने के लिए बोल सकती है, trial को कुछ time period के लिए adjourn करने के लिए भी direction दे सकती है. If the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, अगर किसी चार्ज को ऐड और ऑल्टर करने के लिए उसमें प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी है देन इन दैट केस फर्स्ट ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन आफ्टर दैट ऐड और ऑल्टर दैट चार्ज. सी, if the offence stated in altered and added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on same facts on which the altered या added charge is founded. अगर पहले से आपने sanction obtain कर लिए तब तो कोई requirement नहीं, otherwise first obtain sanction. Now recall of the witness when charge altered. That means charge में alteration हो चुका है. So whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of trial commence होने के बाद कोई भी charge उसमें add किया गया है, alter किया गया, then in that case the prosecutor and the accused shall be allowed, both parties has this right to recall or resummon and examine with reference to such alteration addition any witness who may have been examined for consider that the prosecution of the case may be desires to recall or examine such witness for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice. That means trial start हो चुका है, उसके बाद कोई alteration या addition हुई charge में, then in that case both parties have that right to call or resummon the witnesses who has already been examined, who may have been examined. जब तक कि कोर्ट को ये नहीं लगता है कि दैट ये जो बुलाए जा रहे हैं विटनेसेस रिकॉल री एग्जामिन हो रहे हैं दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन या कॉजिंग डिले या डिफीटिंग एंड ऑफ जस्टिस के लिए हैं, तब तक कोर्ट अलाउ करेगा रिकॉल एंड री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हु हैव ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड. एंड अगर कोर्ट मना करा ही हैज टू रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग दैट द री एग्जामिनेशन एंड रिकॉल इज फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन और डिले और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस.
ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom द कोर्ट में थिंक टू बी मटेरियल. ऑल्ट्रेशन एडिशन के पास कोर्ट चाहे तो एडिशनल विटनेसेस को भी, फर्दर विटनेसेस को भी बुला सकता है. नाउ सेक्शन 218, दिस इज पार्ट बी ऑफ चैप्टर 14, दैट जॉइंडर ऑफ चार्जेस. फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में आपका कंटेंट्स ऑफ चार्जेस थे, बी पार्ट में आपका जॉइंडर ऑफ चार्जेस हैं, विच इज फ्रॉम 218 टू 223. 224 इज फॉर विड्रॉल of charges. Okay. 218 says that separate charges for distinct offenses. That means for every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge, and for every such charge shall be tried separately. That means हर अलग अलग offenses के लिए, distinct offenses के लिए डिस्टिंक्ट सेपरेट चार्ज होना चाहिए. मर्डर के लिए अलग चार्ज होना चाहिए, किडनैपिंग एक ही अगर केस में है तो सबका अलग चार्ज फ्रेम होना चाहिए, सेपरेट चार्ज होना चाहिए, और सबका ट्रायल सेपरेटली होना चाहिए. Provided that where the accused person by an application in writing so desires that and the magistrate is of the opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person. That means distinct offense के लिए separate charges, and those separate charges shall be tried separately. Okay, but if accused person ने एप्लीकेशन इन राइटिंग दी है मैजिस्ट्रेट को, एंड डिज़ायर क्या है, एंड मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट ऐसा करने से प्रिजुडिस नहीं होगा, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑल या एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन को एक साथ ट्राई कर सकता है. सो दिस इज योर जनरल रूल, दिस इज योर एक्सेप्शन. ओके, दैट जॉइंडर ऑफ चार्जेस किन किन केसेस में हो सकते हैं. तो आपका जॉइंडर ऑफ चार्जेस 218 के 1 के प्रोवाइजो में, एंड आफ्टर 219, 220, 221, 2 and 3. ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223. दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर. इनमें पर्टिकुलर्स ऑफेंसेस के बारे में पर्टिकुलर बताया गया है. Like example, A is accused of a theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion. A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt. अलग occasion पे theft किया है, अलग occasion पे grievous hurt cause किया. Then in that case, hurt के लिए अलग charge frame होगा, अलग trial होगा, और theft के लिए अलग charge frame होगा, अलग trial होगा. Okay. 219. 3 offenses of same kind within a year may be charged together. That means if a person has committed, if the accused person has committed an offense of same kind, maximum 3 can be clubbed together within a year. सेम काइंड के होने चाहिए, मैक्सिमम 3 की क्लबिंग हो सकती है, और दैट मस्ट बी विद इन 1 ईयर. दैट मीन्स दीज क्लब, जैसे अगर 1, 2, 3, 4 ऑफेंसेस की हैं, देन क्लबिंग केवल इन 3 की होगी. बट इफ ये ऑफेंसेस 2019 में कमिट किए हैं, ये 2022 के ऑफेंस, देन इन दैट केस इन्हीं 2 की क्लबिंग हो सकती है. विद इन ईयर जितने भी ऑफेंस कमिट किए हैं उसमें से मैक्सिमम 3 की क्लबिंग हो सकती है, इफ दोज ऑफेंसेस आर सेम काइंड ऑफ नेचर. So, when a person is accused of more offences than one of the same kind committed within the space of 12 months from the first to the last of such offences, पहले offense से लेकर के last offense के बीच का gap 12 months से exceed नहीं करना चाहिए. Whether in respect of the same person or not, offense भले different persons के against किया हो या same person के against किया हो, he may be charged with and tried at one trial. इसका एक ट्रायल होगा, अलग अलग ट्रायल नहीं होंगे, 1 ट्रायल होगा फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3. ओके, सेम काइंड, 1 ऑफ सेम काइंड के ऑफेंस किए हैं, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन और नॉट, एंड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स किए हैं, देन इन दैट केस नॉट एक्सीडिंग 3, देन इन दैट केस उस पर्सन का 1 ट्रायल होगा इन ऑफेंसेस के लिए. इन सारे ऑफेंसेस का 1 ट्रायल करेंगे कोर्ट.
Offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the IPC or of any special law or local law. यहाँ explain कर रहे हैं offenses of same kind का क्या मतलब है. That means they are punishable with the same amount of punishment and under the same section of IPC. IPC के same section में same amount से punishable है, या any special law or local law. Provided that for the purposes of this section, an offence punishable under section 379, that is theft, IPC, shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 380 of the said code, and that an offence punishable under any section of the said code or special law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is offence. That means अगर जैसे same kind example दे रहे हैं, provided for the purpose of this an offence punishable under section 379, जो offence 379 में punishable, that is theft, shall be deemed to be an offence of same kind, उसे same kind का offence मानेंगे as an offence punishable under section 380, जो offence 380 punishable, इसमें क्या है, dwelling house में theft of the said code, that is IPC, and that the offence punishable under any section of said code shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such attempt, अगर attempt जो है वो offence है, then in that case अगर उस section का आपने attempt भी commit किया है, then उस attempt को और उस offence को same kind मानेंगे. Now 220, trial for more than one offence. एक से ज़्यादा offence commit किया. If in one series of acts so connected together as to form the same transaction में offences commit हुए हैं. More offences than one are committed by the same person. He may be charged with and tried at one trial for every such offence. Okay? एक transaction में offence commit किए हैं, जैसे theft करने आए थे, theft करने हाउस में एंटर किया in order to commit theft, murdered X, and after that when theft का सामान लेके भागे तो पुलिस ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी हिट किया, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया. व्हाट इज दिस? सेम ट्रांजेक्शन, वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर, एक ही ट्रांजेक्शन में कमिट किया एंड एवरी ऑफेंस इज कनेक्टेड विद दी अनदर ऑफेंस. तो सो कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन, इस तरह से ऑफेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दैट ये सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं. देन इन दैट केस मोर ऑफेंसेस देन वन, जो भी उस ट्रांजेक्शन में कमिट हुए हैं उन सब के लिए चार्ज फ्रेम होगा एंड ट्राई होंगे वो वन ट्रायल में फॉर एवरी सच ऑफेंस. हर ऑफेंस का उस सारे ऑफेंस का वन ट्रायल होगा. व्हेन अ पर्सन चार्ज बट द कंडीशन इन दैट द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय द सेम पर्सन. जितने ऑफेंसेस कमिट हुए थे सेम ट्रांजेक्शन जो फॉर्म कर रहे थे वो डन बाय सेम पर्सन होने चाहिए. When a person is charged with one or more offences of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property under section 212(2) or in section 219 subsection 1 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offence or those offences, one of more offences of the falsification of he may be charged with and tried at one trial for every such offence. 212 subsection 2 हम पढ़ चुके हैं. दैट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है तो ग्रॉस सम ऑफ अमाउंट लिखनी होगी, मनी मेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी एंड मैक्सिमम 12 मंथ्स का ही उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. जितने भी ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो उनका वन ट्रायल होगा. तो वो अगर ऑफेंसेस हैं और 219 के हैं, कौन से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस है. इज एक्यूज्ड ऑफ, दैट पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग व्हाट, फैसिलिटेटिंग या कंसीलिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस. उस ऑफेंस को फैसिलिटेट किया है या कंसील किया उसका कमीशन, या फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के एक से ज्यादा ऑफेंस किए, देन इन दैट केस इसके लिए भी उसका वन ट्रायल होगा फॉर एवरी सच ऑफेंस. ओके, वन ट्रायल मीन्स एक साथ ट्राई करेंगे. इफ द एक्ट अलेज्ड constitute an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offences. That means
act alleged constitute an offense falling within 2 or more separate definition. offense एक किया है उसने जो कि 2 या 2 से ज़्यादा definitions में fall कर रहा है, then in that case उससे उसका one trial होगा. If several acts, more than one act किए, then in that case of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense. मतलब सेवरल एक्ट्स किए हैं, लाइक 4 एक्ट्स किए हैं, जिनमें से ये हर एक्ट अपने आप में अलग ऑफेंस हैं, और जब इनको कंबाइन कर दो तो ये एक अलग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं. व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस. The person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined, and for any offense constituted by one or more of such acts. That means several acts commit किए हैं जो कि अपने आप में अलग offense है, और जब इनको combine करो तो ये एक different offense constitute करते हैं, then इन सबका one trial. So this is all for today. We will continue from section 221 from tomorrow. Okay, thank you.